Hello everyone, I welcome you all. In my last video, I got this comment, so I will be discussing or answering about this comment in this video, and I will be discussing some questions like is it right time to start preparation during graduation, and from where to start the journey and what should be done. Practical suggestions I would give, whatever knowledge and experience I have gathered throughout this 3-4 years. So if you are not like you don't want this, then you can stop the video right here. Okay, and those who want to listen, please continue. So let's start. So the first question, is it right time to start preparation or during graduation? There are multiple examples who has studied in their graduation part for and prepared for the civil services. The first and the one of those examples which can recall is Pradeep Singh IAS. He has cracked IAS exam in just 22 years of age. ठीक है, he used to prepare during the graduation itself. So and there are many more, but he is the one. So many people do graduation में भी start करते हैं preparation, nothing new. हाँ, तो you can do, it is doable माने. ठीक है, next let's discuss each question with like this. Is it right time to start preparation during the graduation? So I would say yes. If the person, if the student, if you are determined to become a civil servant, then you can start your journey wherever you are. Just the realization that you want to become a civil servant, you want to pursue this your dreams and your goals, then this is the right time. ठीक है, कोई पंडित जी को बुला के कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर यू फील द राइट, दिस इज़ द राइट टाइम बस. हाँ, देयर इज़ वन एक्सेप्शन दैट अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, यू कांट स्टार्ट योर प्रिपरेशन 33 ईयर्स के होके यूपीएससी का प्रिपरेशन. बट हाँ, सिविल सर्विसेज के लिए यू कैन स्टार्ट. सो ग्रेजुएशन में स्टार्ट करे या ना करे, यू कैन डू इट. फ्रॉम माई साइड येस, यू कैन डू इट. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द जर्नी. सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, वन शुड अंडरस्टैंड दैट अ सिविल सर्वेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है. में एनी कमीशन, वेदर इट इज़ यूपीएससी, एपीएससी, बीपीएससी और एनी पीसीएस कमीशंस, स्टेट कमीशंस, what they look for in a civil servant. Three things, according to my limited knowledge, three things are required. The first is mindset, second is personality, and third is knowledge. Mindset is like your attitude, the positive attitude, the problem solving attitude, the attitude of solving or seeing thing optimistically yet pragmatically, and the diplomatic होना, ये सारी चीज़ माइंडसेट का गेम है. एंड अ सिविल सर्वेंट मस्ट नो दिस. सो मैं ये ग्रेजुएशन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, जिस मैं बोल रही हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. एंड देन कम्स द पर्सनालिटी पार्ट. पर्सनालिटी नॉट इन द योर अपियरेंस, लाइक आपके स्किन कलर क्या है, आप कितने सुंदर दिखते हो. नो, दैट्स नॉट पर्सनालिटी. पर्सनालिटी इज हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, इवन हाउ यू बिहेव विद अदर्स, हाउ यू कम्युनिकेट, एवरीथिंग मैटर्स. सो दैट्स अ सिंपल वे में दैट्स पर्सनालिटी. एंड नॉलेज तो ऑफकोर्स उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा. सो इन दिस थ्री एस्पेक्ट्स वी एनी एस्पिरेंट हैव टू वर्क. सो ग्रेजुएशन में आप क्या कर सकते हो. नॉलेज पार्ट के लिए यू कैन डू the best thing you can do is to concentrate on your undergraduation subjects and try to have utmost clarity over them. ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा. जैसे कि आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैंने अगर वंस यू गो थ्रू द सिलेबस यू विल नो दैट देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव टू स्टडी, right from the science and tech to history to polity to geography, every subjects. like यहाँ पे कोई साइंस मैथ्स इन सब का फाउंडेशन नहीं है. सो वट एवर सब्जेक्ट्स यू आर डूइंग इन ग्रेजुएशन, जस्ट होल्ड कमांड ओवर दैट. अगर इफ़ यू आर हैविंग ऑनर्स और इवन इन पास कोर्स, अभी तो शायद पास कोर्स नहीं है, बट इवन यू इन इफ़ यू आर रीडिंग लाइक पॉलिटिकल साइंस, देन ट्राई टू हैव द कमांड, have that topics whatever is in your syllabus, to have complete clarity over them. Political science हो गया, economics, even in commerce and accounts, everything whatever you are reading, just have clarity over them. ठीक है, ये बाद में भी काम आएगा.
And second, you can do is to develop the habit of newspaper reading. Many people don't read newspaper. So if you really want to help yourself, then you can start to develop the habit of newspaper reading. आपको एनालाइज नहीं करना है, जस्ट रीड, गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स. कैसे पढ़ने की ज़रूरत है ये सब कुछ समझ में आएगा जब आप 3-4 महीने पढ़ने लगोगे. देन यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली क्या पढ़ना होता है. बट अभी जस्ट स्टार्ट, जो भी हेडलाइन ही पढ़ो, पॉलिटिकल न्यूज़ हो कि राहुल गांधी ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, वट एवर, बट जस्ट डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग दिस. ओके. एंड थर्ड, go through the syllabus if you get the time. Then just meanwhile means here sometimes you just go through the syllabus, see whatever topics are there, just इतना ज़्यादा serious होके नहीं, just go through it once. And if you further want to study, देखो ये तीनों जो है ना करना, वो आपके अभी के लिए काम आएगा. वट एवर यू आर डूइंग इन योर अंडर ग्रेजुएशन, इट विल बी बेनिफिशियल. एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें. बट इफ़ यू हैव अनदर टाइम, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ बेसिक NCERTs. NCERTs आर ए मस्ट. बिना सिलेबस देखे भी यू कैन स्टार्ट NCERTs, क्योंकि पता है कि काम आने वाला है. सो यू कैन स्टार्ट. दिस इज़ माई 2 सेंस. बट हाँ, अगर आप सिलेबस देख के फिर NCERT पढ़ोगे तो दैट विल बी मोर देन फाइन, मोर देन जस्ट फाइन. सो यू कैन जस्ट स्टार्ट NCERTs क्लास 6-7, नहीं भी 9-10 के भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा. इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है. एंड व्हेन यू रीड NCERT ना, गो बैकवर्ड्स. 11-12 का ना सही, 10 से स्टार्ट करो. 10 फिर 9 ऐसे ऐसे जाना. अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो फिर नीचे जाना, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, यू कैन गो. दिस इज़ द नॉलेज पार्ट यू कैन डू इन ग्रेजुएशन. ठीक है, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया उसके बाद आप ये कर रहे हो, नहीं, उसके पहले वाले के लिए ये है. एंड देन फॉर पर्सनालिटी पार्ट के लिए द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर अंडर ग्रेजुएशन ईयर्स is to participate in the co-curricular activities, the annual day function. There are several competitions, inter-college, inter-university, different multiple competitions होते हैं ना, उन सब में participate करो. It will enhance your personality, it will develop your holistic personality, and you will be benefited immensely after this. I bet you, I can guarantee this. ठीक है, जितना हो सके इसमें जीतना नहीं है. किसी भी कंपटीशन में जीतने के लिए मत लड़ो, बस पार्टिसिपेट करो और एक्सपीरियंस गेन करो. लाइक पब्लिक स्पीकिंग वाले होते हैं, लिटरेरी कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स, मैनी थिंग्स, मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स. पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. इवन इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग ना, फिर भी पार्टिसिपेट करो. दैट वॉज आई यूज टू डू. इनफैक्ट माई फ्रेंड्स एंड आई यूज टू डू इट इन आवर कॉलेज डेज. सर खैर, नेक्स्ट इज, इफ़ यू get the chance, then do join NSS, NCC या Scout and Guide, any one of these 3. एंड अगर कुछ और होता है उसमें से भी कुछ एक ज्वाइन कर सकते हो आप लोग. काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन होता है. लोगों से कनेक्ट करना, मतलब दिस 3 हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, बट आई कैन ओनली टेल अबाउट NSS and it has benefited me a lot. So if you get the chance, then do join NSS in your college days. ठीक है, इस लीडरशिप क्वालिटी में आपको डिसिप्लिन आएगा, लीडरशिप क्वालिटी में हेल्प मिलेगी. एंड ऑल्सो यू कैन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ़ यू डोंट हैव एनी कमांड ओवर लैंग्वेज, देन यू कैन डेवलप, चलो इंग्लिश ही पकड़ते हैं, देन यू कैन डेवलप कमांड ओवर द लैंग्वेज. या फिर कुछ और भी लैंग्वेज हो सकता है, उसके ऊपर कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं आप लोग. ये सारी चीज़ों पे अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं. इन सब पे you can work. And fourth number is what I will say कि hobbies and interest if you have, then do pursue it. उसको develop करें, और अगर नहीं है तो उसको search करें कि what interests you, what suits you the best, because it will work you in coping the stress जो कि आने वाले है in preparation वाले stage में. ठीक है. And last but not the least is your health, both mental and physical. उस पर ध्यान रखें. फिज़िकल हेल्थ, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दें, और मेंटल के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो. इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा. सो दिस थिंग्स यू कैन डू फॉर पर्सनालिटी. एंड द
व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट वाला पार्ट, तो अगर आप ये और ये करते हो ना, तो माइंडसेट अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होने लगेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड व्हेन यू स्टार्ट seriously your preparation seriously, then it will automatically develop. By that time it will be developed. So just this was what I wanted to say. And the person has called me didi na, that's why I wanted to advise, humbly actually advice भी और एक humble request भी करना चाहूँगी that this phase, अंडर ग्रेजुएशन का फेज़ जो होती है ना 3-4 years का, दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ. सो प्लीज़ enjoy every bit of it. Don't just spend entire year or entire time stressing about the preparation or stressing about the future. Please don't. पता है यहाँ पे you are creating the memories you're gonna cherish your entire life, not just preparation stage. And one thing also I would like to tell is that कि when you enjoy the phase ना, enjoy means पढ़ाई के साथ enjoyment, ये नहीं कि bunk करके enjoy कर रहे हैं ना, friends के साथ, teachers के साथ मस्ती कर रहे हैं, memories collect कर रहे हैं ना, तो those memory helps you in coping the stress which this preparation gives you. इट्स गोना गिव यू एक्चुअली. अभी डरा नहीं रही हूँ, बाकी तो मिलने ही वाला है. काफ़ी 2-3 साल काफ़ी स्ट्रेस होती है, इनफैक्ट अभी भी मुझे काफ़ी स्ट्रेस है, बट जो उस टाइम के मेमोरीज मैंने कलेक्ट की है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे इससे सेल थ्रू करने में हेल्प करती है. आई चेरिश दोज मोमेंट, द टाइम स्पेंड विथ फ्रेंड्स, प्रोफेसर्स की बातें, प्रोफेसर्स की नॉलेज देने, उनकी गॉसिप्स थोड़े बोल सकते हैं, अच्छे वाले लाइफ लेसन्स सारे याद आते हैं. एंड इट हेल्प्स, एक्चुअली इट हेल्प्स. So I would request you to do pursue that. And I wish you all the very best for your future. And if you have any doubt, then you can comment below. And thank you for watching. Thank you so much.